In our lives, we always have choices, either to choose this or something else. So, we also have the choice of choosing fear or not. So, hello everyone. Today I'm going to talk about fear is a choice. Is it? Or it is somehow deep within us only. But it's still a choice, right? Even if it is ingrained in our mind and body, yet it's a choice. It's our choice that we can choose to let this fear grow or stop it right away. Yes, it's a choice. It's a very conscious choice that we make on our day-to-day basis. But what governs these choices? These choices mainly govern with various negative emotions that I would like to recall. Emotions like comparison, emotions like not being liked, something that might get you in trouble and you feel like it's better to fear and back off instead of facing it. Even though you have that high desire to achieve something, yet fear back of the mind that what if I lose? I might lose. What if doesn't work out for me? What if things doesn't turn out to be in my favor? What ifs? There are a lot ifs, right? But it's a choice. It's a choice that you are letting that fear grow to an extent and not taking the action. It's a choice of not taking action towards your goal, towards the life that you want to have. Fear knocks and courage decides whether to open the door or not. Yes, it's our conscious decision that we are letting that fear inside us or not. क्योंकि चीज़ें तो आएंगी, like the fear, the thought of what if we might fail, the thought of कि ये हमारे फेवर में काम नहीं कर सकता, thought of कि ये हमारे लिए सही नहीं है, वो आएगा. But the thing is कि आप उसको कितना टाइम तक होल्ड कर रहे हो या फिर आप उसको अपने पास रख भी रहे हो कि नहीं, ये मैटर करता है. For an example, you are there about to go on a stage and you have that public fear and you are well prepared, yet you feel like कि क्या होगा अगर मैं कुछ वर्ड गलत बोल दूँ, क्या होगा अगर something goes wrong, क्या होगा अगर माइक का कुछ इशू हो जाए, क्या होगा अगर if people started laughing. But because of these thoughts you are not taking action, right? You aren't able to go up to the stage and speak. But ये क्या होगा सोच करके क्या पता कुछ अच्छा हो सकता था and you missed that. Who knows? I mean, taking actions is we feel like fear is the easiest thing, but action is the easiest thing. And every time we choose action instead of fear, we win. We win in our life. भले वो छोटा win हो, बड़ा win हो, that doesn't matter. But ये छोटे-छोटे wins ही, it let you win in your life. So start taking actions. Let the fear, sit in the background and ask your fears to watch what I can do. देखो, डर सबको लगता है. अब हमारा जो कहते हैं ना, वो somehow वो subconscious जो fear होता है या फिर conscious fears भी जो कह सकते हो, वो है. अब वो कैसे आए, क्यों आए, कब आए, वो आप बस सोच सकते हो. हाँ, you can let it go if it is possible and if it is in your hand for sure. But there are times जब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें पता नहीं होता and we fear from that. So what you're gonna do at that point of time? उसको overcome करने का एक ही तरीका है to face that particular scenario. Let the event happen. Then only you will get to understand कि ठीक है, it was just कि ठीक है, वो बस आपको डराने के लिए बैठा हुआ है कि your fear or the things that you think of yourself ना and you become your biggest critique, ये क्यों है? क्योंकि वो back of the mind वो fear always play करता रहता है. Even if अगर कोई बहुत confident भी है ना कि ठीक है, I am a good speaker और उसने लाइफ में बहुत बार स्पीच दे चुका है, yet that person will feel like somehow कि ठीक है, कुछ भी हो सकता है, but I'll have to prepare and let me take the action, let me speak, let me show the confident. वो रुकेगा नहीं. यहाँ पे एक आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, एक ऐसा इंसान जो कि अपने फियर को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है और एक ऐसा इंसान जो कि चूज कर रहा है कि नो, आई एम गोना टेक द एक्शन, आई एम गोना एक्सेल इट एंड लुक लिटरली
आई टू आई कन्वर्सेशन हो रहा है कि ठीक है बैठ के तुम देखो मैं ये क्या करता हूँ, डर तो वो भी रहा है, राइट? इट्स नॉट लाइक कि वो एकदम उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ना डाउट्स एंड इनसिक्योरिटी है, सबके अंदर होता है, कुछ लोग बताते हैं कुछ लोग नहीं बताते, दैट्स प्रीटी दैट्स क्वाइट ओके. बट द थिंग इज हाउ मच गट्स यू हैव टू डिसाइड विद दैट फियर एज वेल कि ठीक है यू आर गोना डू इट. सो डू इट, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन यू फील लाइक कि तब क्या होता तो शायद अभी मैं डिफरेंट होता, तब एक्शंस लिए होते तो अभी मेरा स्किल सेट, मेरा लाइफ, या फिर शायद मैं ऐसे डिसीजंस ले पाता जो कि शायद उतना मुश्किल भी नहीं था, बट दैट फियर मेड इट अ बिगर वन. सो एंड लिटरली आई लर्न दैट फियर लिव्स ओनली व्हेन यू कीप फीडिंग इट. कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और आप 1000 पॉसिबिलिटीज बना ले रहे हो कि क्या गलत जा सकता है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कॉन्शियसली फीडिंग योर फियर कि भाई हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता बात की बात है, बट ट्राई एटलीस्ट एंड ट्राई योर बेस्ट. अगर कुछ गलत भी होता है ना, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव द सेटिस्फैक्शन कि आपने वो ट्राई किया, ठीक है. एंड वो फियर जो है ना, भले कुछ गलती हुई है बट वो फियर 50% तक घट जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका इन एक्शन नहीं था, यू टुक द एक्शन, राइट? एंड somehow it helps a lot. और ये अभी 50% है, then 70% होगा, then 80% होगा, and then there will be time कि 90 to 95% होगा. 100% कभी नहीं होता है, क्योंकि as a human we have that somehow social insecurity that we might get somewhere wrong, या फिर कुछ हम गलत प्रोनाउंस कर देंगे, फंबल कर देंगे. That is pretty much fine. I am talking about the whole life. चाहे आप रिलेशनशिप की बात करो, अपने पर्सनल लाइफ की बात करो, प्रोफेशनल लाइफ की बात करो, किसी भी चीज़ का बात करो, हमारे लाइक बैक ऑफ द माइंड हमारे अंदर वो फियर इनग्रेन्ड है. कहाँ से आया? देन अगेन एक क्वेश्चन अराइजेस, यू हैव टू लुक इट विद इन योरसेल्फ and fix it by taking actions, fix it by knowing from where this fear is coming from. Next, the moment you will stop running, your fear will start shrinking. अब हमें क्या होता है ना कि अगर हमारे दिमाग में आया कि यार ये ऐसा हो सकता है, हम क्या करते हैं, we have that escape mentality कि हम उसी से दूर भागने लगते हैं कि ठीक है इसको हम कुछ टाइम बात करते हैं, इसको बाद में देखा जाएगा, इस स्किल पे बाद में काम करते हैं. क्यों कर रहे हैं हम लोग? why we are shrinking ourselves? वो चीज़ का डर है कि what if, एंड वो एस्केप के चक्कर में वो फियर बढ़ता जाता है. बट द मोमेंट यू लिटरली स्टॉप रनिंग फ्रॉम द फियर, इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग. एंड जैसे मैंने बोला ना कि अभी 50% है, देन 70%, देन 80%, वो धीरे धीरे यू विल बी कॉन्फिडेंट अनफ, एंड देन कम्स फियर इज लाउड बट इट हैज नो रियल पावर. इज इट विजिबल? अगर मैं यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ, इफ आई हैव फियर ऑफ समथिंग कि ठीक है what if I might say something wrong to that person, मेरे दिमाग में वो फियर है कि मैं शायद ये रिलेशन बिगाड़ सकती हूँ, बट अल्टीमेटली वो फियर बोलेगा या फिर मैं बोलूँगी. माई कॉन्शियस माइंड विल स्पीक विद द वर्ड्स और माई फियर विल. सिमिलरली ऑन स्टेज इस जिसकी बहुत सारी चीज़ होती है, हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है, नर्वसनेस होता है, तब कुछ फंबल हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट अल्टीमेटली हु हैज़ द पावर? योर कॉन्शियस माइंड. बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? फियर को सारा पावर दे देते हैं, मतलब उसको इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, यार मुझे डर लग रहा है. एंड एवरी टाइम यू विल चूज एक्शन, फियर विल लूज कंट्रोल, एज आई सेड. क्योंकि जब जब आप एक्शन लोगे, आपका जैसे जैसे फियर घटता जाएगा ना, वैसे वैसे यू विल स्टार्ट द फियर विद इन यू विल स्टार्ट लूजिंग द कंट्रोल. वो जो लाउडनेस था ना, इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग. एंड व्हाट विल ग्रो? कॉन्फिडेंस, योर होल पर्सनैलिटी, द स्किल सेट. और किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको फियर है, वो अगर साइड चला जाएगा, जस्ट इमेजिन हाउ फ्री यू विल बिकम. मतलब ये क्या है? इट इज़ लिटरली मेंटल हैवीनेस, राइट? कि ठीक है ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. इसको मेंटल समहाउ इंस्टेबिलिटी भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए केपेबल हो, येट समटाइम्स आर फियर्स डजंट लेट अस डू और टेक द एक्शन विच इज़ नॉट राइट. क्योंकि if you are meant to be, if you have done enough, practiced enough, learned enough, then what's the problem? You are there to win the game. Just imagine if you aren't even taking action, how you're going to win the game? आप तो गेम में एंटर करने से पहले ही बाहर हो गए, which is not recommendable. And when fear says, what if I fail? You should say, what if I grow? Grow out of your comfort zone, grow out of the fear, grow in life. क्योंकि जो चीज़ें हमें लिमिट करती है ना, हम कभी कभी उसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, बट द मोमेंट वी स्टेप आउटसाइड और जब हम एक प्रॉपर व्यू लेते हैं, देन वी गेट टू अंडरस्टैंड कि कितना कुछ है यहाँ पे, एंड वी हैव बीन लिमिटिंग आवरसेल्व्स थ्रू आउट बिकॉज ऑफ दिस फियर. सो टेक एक्शंस एंड ग्रो. एंड व्हेन यू रियलाइज दैट फियर इज नॉट truth, but it's just a thought,
इट्स जस्ट समथिंग लाइक एक छोटा सा थॉट है एंड हम लोग क्या करते हैं उसको वो चेन ऑफ थॉट्स में ला करके उसको इतना बड़ा चढ़ा देते हैं. दैट इज द रीजन आई सेड फियर इज लाउड बट इट हैज नो पावर. ये आपके ही दिमाग का उपज है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि इट्स यू हु इज फीडिंग योर ओन फियर. बट दैट दिस शुड नॉट बी द चॉइस. इट्स लिटरली अ स्मॉल और टाइनी थॉट जिसको लिटरली हम अपना होल पर्सनैलिटी बना देते हैं, क्योंकि what we are doing here, we are having that fear is not letting us take the actions, right? But do you think that tiny thought is the truth? No, it's not. It's just a thought, and a thought that is limiting you, and this should not be recommendable. The day you will choose yourself, fear will stop choosing you. क्योंकि जब आपको पता होगा what potential you hold, जब आपको पता होगा what you are meant to be, एंड जो भी लिमिटिंग थॉट्स है ना, आपको जब वो अपना पोटेंशियल दिखेगा दैट विल वैनिश. देयर विल बी नो लिमिटिंग थॉट्स, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है ना आप खुद को कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट थॉट इन द बैक ऑफ योर माइंड. बट द मोमेंट आप उस जो थॉट है, वो जो डर है, उसको खुद पे हावी होने से रोक दोगे, लिटरली द फियर विल स्टॉप चूजिंग यू. क्योंकि नाउ इवन दो द फियर इज इन द माइंड बट स्टिल यू आर टेकिंग एक्शन. यू आर नॉट लेटिंग दैट फियर टू make you this much uncomfortable or scared that you aren't even taking a step ahead. So यहाँ पे if you're not entertaining that fear, how that fear will be keep choosing you again and again. It's very simple, कि ठीक है आप अगर किसी को choose नहीं करते तो why that person thing or anything will choose you. It's as simple as that, but you'll have to understand it. You should stop choosing the fear so fear can stop choosing you. And fear is a habit, but courage is a decision. अब हमारे मन में बहुत कहते ना, इफ़ वी आर ऑफ अ सर्टेन एज, बहुत सारी चीज़ें हुई होती है, बहुत सारी कभी छोटी चीज़ होती है, कभी बड़ी होती है, एंड दैट समहाउ टर्न थिंग्स इनटू ट्रॉमा, फियर और बहुत सारी ऐसे नेगेटिव इमोशंस बोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट ये चीज़ क्या होता है ना, हम इस चीज़ में कंफर्टेबल हो जाते हैं. अगर डर बोलो, इनसिक्योरिटीज़ बोलो, लिमिटिंग बिलीव्स बोलो, सेल्फ क्रिटिसिज्म बोलो, वी समहाउ गेट कंफर्टेबल इन इट सो मच दैट अब हमें इससे निकलने में ही लगता है कि इससे निकल करके हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. बट ट्रस्ट मी और नॉट, इट्स जस्ट अ हैबिट. एंड द मोमेंट आप जब एक होल्ड लगाओगे कि नाउ आई डोंट चूज टू बी दिस, एंड द मोमेंट यू विल हैव द करेज टू टेक एक्शन टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप ऑफ फियर, थिंग्स विल चेंज. क्योंकि अब आपके बैक ऑफ द माइंड में फियर है, बट वो फियर इतना आप पे हावी नहीं हो सकता कि आपको वो स्टेप लेने से रोक सके जो आपको पता है कि आपका वो लाइफ चेंजिंग स्टेप हो, जो कि आपको पता है, क्या पता कि भले ये मेरे लाइफ में इतना बड़ा चेंज ना लेकर के आए, बट एटलीस्ट 2% कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करे. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट 2%, बट इट्स अबाउट कि बूंद बूंद से सागर बनता है. इन एवरी मोमेंट जब आप चूज करोगे कि नहीं, आई विल नॉट लेट माई फियर टू टेक ओवर, यू आर गोइंग टू विन. वो एक ड्रॉप से ही इट विल रीच टू 110%, एंड यू विल बिकम अ पर्सन ऑफ योर ओन ड्रीम्स, जिसको शायद आप आइडलाइज करते हो, यार भाई बनना है, इसकी तरह बनना है. हाउ, क्या लगता है वो बंदा अगर उस लेवल तक आया होगा, कैसे आया होगा? बहुत बार बहुत सारी चीज़ें उसने सैक्रिफाइस किया है, बहुत बार उसने अपने बहुत सारे डर को पीछे रखा है कि भाई तू टेबल पे बैठ के एंजॉय कर, ठीक है, एंड लेट मी शो माई गेम. डू इट. I recommend you that don't just be fearless, but be fearless enough to never let that fear stop you in any given condition, in any given scenario. क्यों? क्योंकि it's just a thought. ये हमारे ही दिमाग का एक उपज है जो कि हमें सेफगार्ड करता है अनकंफर्टेबल होने से. एंड अगर आपको लगता है कि आप अपने कंफर्ट में रह करके you can achieve a life that you want, you can't. It's never going to favor you anyhow. So choose wisely. Thank you.